فطرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلندر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بوالد بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت مچلے توجہ ہے بات شروع کی جائے مسلسل آپ نے مفہوم اطاعت کو سماعت فرمایا اطاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے اطاعت کا ولایت سے کیا رشتہ ہے اور اطاعت ہی وہ چیز ہے جو عبادتوں میں کمی واقع نہیں ہونے دیتی عبادت محکوم ہے اطاعت حاکم ہے اطاعت عبادت والے کو عبادت چھڑوا کے بلا سکتی ہے عبادت اطاعت والے کو اطاعت چھڑوا کے نہیں بلا سکتی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا مسلسل 3 دن میری پسلیوں میں ٹھوکریں مارتی رہی ہے ایک حقیقت اور میں اس سے صرف نظر کرتا رہا یعنی میں عبادت اور اطاعت کو الگ کہتا رہا اور اس پر بات ہوتی رہی کہ عبادت اللہ کی ہے اطاعت جو ہے وہ معصوم کی ہے لیکن آج آخر میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ در حقیقت حقیقی عبادت ہوتی ہی اطاعت ہے دونوں میں کیوں چھوکے بھائی سامنے بڑھو کیا کہنے سمجھ گئے حقیقی عبادت واہ واہ اطاعت ہی ہے بے شک آیت پڑھوں ہمیں تو مولوی نے یہی بتا رکھا ہے نا کہ بس جس کی نماز پڑھی جائے وہ عبادت ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں نمازیں تو دور کی بات ہے ڈاکٹر ظفر ایک نماز جس نے پڑھی جہنم نہیں جا سکتا سبحان اللہ نعرہ سارے لانا ہے جڑے بندے کہتے ہیں نا یہ گھڑی مڑی اٹھتے ہیں کیونکہ سانو 50 سال ہو گئے نے مجلساں سنتے ہیں تے جناب سعید دی وہ نماز بھی ساڈے سامنے ہے جیڑی تیرہ چ جناب حسین پڑھی ہے تے اگے جناب سعید کھڑے ہو گئے تسی سمجھو یہ تکلیف نال اٹھتے ہیں مل کے نعرہ حیدری سبحان اللہ کی بات ایک نماز والا جہنم نہیں جا سکتا بلکہ میں ایک بات اور کروں جس نے ایک سجدہ کیا وہ جہنم نہیں جا سکتا تو پھر جاؤ علماء تک میرا چیلنج لے جاؤ پھر وجہ کیا ہے کہ شیطان لاکھوں نمازوں کے باوجود جہنم جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے عبادت کی ہی نہیں اگر ایک نماز بھی اس کی عبادت ہوتی تو جہنم نہ جا سکتا آؤ اطاعت ہی عبادت ہے آیت پڑھنے لگا سورہ مومنون زبر بھائی کون سا سورہ مومنون درباریوں سے مشورہ کر رہا ہے فرعون درباری کہتے ہیں یہ موسیٰ اور ہارون کہتے ہیں
کہ ہم پہ ایمان لاؤ، تو کیا خیال ہے لایا جائے؟ فرعون کہہ رہا ہے انومنو لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، ہم ان دو بشروں پہ ایمان لائیں جو ہم جیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی فرعون نے موسیٰ کو بشر کہا ہے، موسیٰ کے کسی امتی نے کبھی بشر نہیں کہا۔ بشرین مثلنا، ایسے دو بشروں پر ایمان لائیں جو ہم جیسے، جو ہماری مثل ہیں۔ وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے۔ بھائی یہ روایت نہیں آیت ہے۔ اب ندیم اس میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرعون کہہ رہا ہے لنا عابدون، اس کی قوم ہماری عابد ہے۔ کیا فرعون کی نماز پڑھتے تھے وہ؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے۔ تو اطاعت کو اللہ نے عبادت کہا، نہیں بلے بڑی بات۔ اور آیت پڑھو سورہ یاسین منسوخہ، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو مجھے وہ بندہ دکھاؤ جو شیطان کی نماز پڑھتا ہو، جو شیطان کے نام کا روزہ رکھتا ہو، نہ کوئی مشرک ایسا کرتا ہے نہ کافر، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعبد الشیطان کہ عبادت نہیں کرنی؟ یعنی شیطان کا کہنا نہیں ماننا، شیطان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت کو عبادت کہا۔ سرور یہ دو آیتیں تھیں، اصول کافی سے بڑی کتاب ہے تو مذہب میں لا، سرکار صادق سے بڑا عالم ہے تو دکھا۔ سرکار فرماتے ہیں من اسوا الی ناطق فقد عبدہ وان کان الناطق ینطق عن اللہ فقد عبد اللہ وان کان الناطق ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان۔ فرمایا جس بندے نے کسی ناطق کی بات مانی اس نے اس کی عبادت کی۔ کسی نے من اسرائیل، جس نے کسی ناطق کی طرف کان دھرا، اس کی بات مان لی، فقد عبدہ، اس نے اس کی عبادت کی۔ ان کان الناطق ینطق عن اللہ فقد عبد اللہ، اگر وہ ناطق اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو عبادت اللہ کی ہوئی۔ ناطق ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان، اگر ناطق شیطان کی طرف سے بول رہا ہے تو عبادت شیطان کی ہوئی۔ تو یعنی اطاعت اور کہنا ماننا ہے عبادت۔ اب اللہ جانے میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے۔ بد نصیبی تو یہ ہے کہ شیعہ ہی زیادہ اشتباہ کا شکار ہے آج کے زمانے میں۔ علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں سے علی منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ سر اٹھاؤ، اطاعت عبادت ہے، کہنا ماننا عبادت ہے۔ اسی لیے تو خیبر شکن کہہ رہا ہے انا العابد انا المعبود، دنیا والوں میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں۔ بلے بڑی بات ہے سبحان اللہ۔ ہاں، فرمایا میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں۔ بعض چہروں پہ
बड़ा सवालिया लगा हुआ है नवीद, उसे मिटाता चलूं। और कोई बात समझ में ना भी आए, ये तो दिन रात सुनते हो, जिक्र वाली ये नहीं इबादा। वाह 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 वाह, क्या चाहिए मुझे फिक्र है। अली का जिक्र इबादत है, तो जो अली का जिक्र कर रहा है वो इबादत कर रहा है, माबूद है अली। इब्राहिम का ये जिक्र नहीं वो कहे कि मैंने नमाज अल्लाह से सीखी। तेरे बाप आदम का तो हाल मैंने ये देखा है कि रूह आई आंखों में, ऊपर देखा एक नूर 14 हकीकतें एक पैकर में नजर आई। फस्ताज़म अमरही, अल्लाह नजर नहीं आता था, आदम ने समझा यही है मेरा अल्लाह। रसूल कह रहा है फसब्बहना लितालीमिही फकुलना इन्ना अबीदुन लसना बिअहलिहा, हमने आदम की तालीम के लिए तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी ताकि पता चले ये बंदे हैं खुदा को याद है। बड़ी बात जी, इताअत ही इबादत है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, हकायक को पहचानने की कोशिश किया करो। हाँ, अभी एक साहब मुझसे पूछ रहे थे, ये रात जो आपने हजरत यूसुफ की दुआ के बारे में कहा, शिया किताबों से पढ़ा, अहले सुन्नत की किताबों में तो नहीं। 70% अहले सुन्नत की किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि आदम से लेकर ईसा तक जिस नबी ने जब कभी दुआ मांगी यही कहा, इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला, बिहक़्क़ि फ़ातिमत व अंतल फ़ातिम, बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीर। यानी हर नबी का इनके हक का वास्ता देना दलील है इस अम्र की कि उनका अपना हक होता तो अपना न मांग लेते। कह देते कि मेरे हक से, अब मेरी पनाह से जवार भाई किसका पैमाना अच्छा लग जाए मुझे परवाह नहीं। हाँ, कुफ्र ईमान की सरहद से गुजरते हुए एक बात कहते हुए चला जाऊंगा, हर शख्स अपने पैमाने अकीदत को खुद संभाले। हाँ, छेड़ोगे तो फिर इस तरह बात तो छिड़ेगी। जिनका अपना कुछ हक होता है, मैंने उन्हें इस तरह देखा है, इज्जत हैदर की कसम, चादर ज़हरा की कसम, झूठ बोलो जबान जहन्नम के कुत्ते चबाए। वरना शक करने वाले के अपने नुत्फे में शक है। एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए तेरे इमाम शेषम को बुलाया गया, ठोकर मारी, तुम बेइज़्निल्लाह उठ, अल्लाह के इज़्न से नहीं उठा, अली के बेटे को जला लाया, अल्लाह के गुस्से को गुस्सा आ गया, ठोकर पढ़ा के कहा तुम बेइज़्न जाफर इब्न मोहम्मद, उठ जाफर को। सादिक के इज़्न से। तो अगर आदम से ईसा तक किसी का अल्लाह पे हक निकलता होता तो कह देता सालों का बेहक्की, मैं अपने हक से मांग रहा हूं। हाँ, इसकी बरक्स और आगे दलील है, एक ही हज पढ़ा है तुम्हारे रसूल ने, वही पहला है वही आखिरी है, और उसी को हिज्जतुल विदा कहते हैं।
ایک صحابی غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے، الہی بے حرمت بیت کہاذا آتنا الجنت، پالنے والے تجھے اپنے گھر کی حرمت کا واسطہ مجھے جنت عطا کر۔ رسول کا گزر ہوا، کندھے پہ ہاتھ مارا، رہا کیا کہہ رہا ہے؟ جنت مانگ رہا ہوں کعبے کا واسطہ دے کے۔ فرمایا سل بے حرمت، اپنی حرمت کا واسطہ دے۔ اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا جملہ، کس کے سینے دل میں اترا۔ فرمایا سل بے حرمت، اما تعلم ان المومن اعظم حرمت من الکعبہ، تجھے پتا نہیں مومن کی حرمت کعبے سے کہیں زیادہ ہے؟ مومن کعبے سے حرمت میں عظیم نہیں اعظم ہے۔ 16 سال عمر ہوگی ڈاکٹر ظفر اس وقت میری، جب میں نے پہلی بار یہ کتاب میں پڑھا، قبلہ میرے زندہ تھے، میں انہی کے سامنے لے گیا، میں نے کہا جی شک تو نہیں ہے کعبے سے مومن کی عزت زیادہ؟ مجھے دیکھا اور ممبر کی قسم، موت سے ہم اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنے اپنے قبلہ سے ڈرتے تھے۔ میں نے کہا بڑے جاہل ہو تم؟ میں نے کہا جی ہوں تو پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتا، سلمان کیا مہمان آ گیا، مہمان کا ہاتھ پکڑا، صحرا میں نکلے، مدائن کی گورنری کے زمانے کی بات ہے، صحرا میں نکلے، ہرنوں کے ڈار چل رہے ہیں، فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں۔ سلمان نے پکار کے کہا انی اریدو طیرن و زبیًا سمینون منکم جاءنی ضیف انی اریدو اکرامہ۔ فرمایا مجھے ایک موٹا تازہ ہرن چاہیے، ایک موٹا تازہ صحت مند پرندہ چاہیے، مہمان آیا ہے، دعوت کرنی ہے۔ مل کے نعرہ جلدی نعرہ میں مارنا چلو وہ تو گل دن انہوں دسنی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری پیر اور مسافر ہے، بات بتانے کے لیے میں جو بیٹھا ہوں، ہاں سر اٹھانا، بس یہ کہنا تھا۔ غول سے ہرن نکلا، ڈار سے پرندے نے اڑان بھری زمین کی طرف، خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مہمان حیران ہو کے کہتے ہیں ان الوحشا، یوتھیوں کا یہ وحشی جانور اور پرندے تیری اطاعت کرتے ہیں؟ سنچو سلمان نے مسکرا کے کہا حل رائے عابداً یطیع اللہ فیوصیہ، فرمایا تو نے کوئی دیکھا ہے ایسا بندہ کہ وہ اللہ کی ہر بات مانے اور اللہ اس کا کچھ بھی نہ مانے؟ مل کے نعرہ حیدری سبحان اللہ۔ نہیں، ایک حدیث قدسی پڑھی بہت دفعہ ہے میں نے ممبروں سے، لیکن آج تک اس کا صحیح ترجمہ نہیں کیا میں نے۔ واہ 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 سبحان اللہ سیدہ آبا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ حدیث قدسی اور ڈاکٹر صاحب ابھی آج تک اس کا ممبر کی قسم میں نے حقیقی ترجمہ نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں آج دل ابل رہا ہے کہ آج حقیقی کر دو۔ نہیں، بشرطے کہ مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرے سامنے کم ظرف کوئی نہیں۔ ہے حدیث قدسی اللہ کا کلام۔ حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام ہے جو بغیر فرشتے کے براہ راست رسول سے اللہ گفتگو کرتا ہے۔ شیخ
और आमली, क्या करो? हाँ, मशहद में मौला के मज़ार में मदफून है। उन्होंने एक किताब लिखी है अल जवाहिर सनिया फिल अहादीस अल कुदसिया, माशाल्लाह। उसमें सारी अहादीस कुदसिया जमा की हैं, उसमें मिल जाएगा। हवाला सुन लिया? अब मैं देखता हूं हजूर आशिक आ गए हैं। सवाब में तो शामिल हो गए, मौजूद से रह गए। नहीं होगी, दूर से आना पड़ता है, कोई ना कोई मजबूरी होगी सफर की। सर उठाना, मेरी तरफ देखना, हर चेहरा मेरी निगाहों का हदफ है, सुभान अल्लाह। हर सफ़े रुखसार मेरी नजरों के जद में है। क्या कहने? हाँ है हदीस कुदसी, हवाला मैंने बता दिया, या फतवा अल्लाह पर या फतवा हुर्रे आमली पर। बहुत छुपाया जाफर नकवी, 30 साल मैंने इस तर्जमे को सीने में दबाए रखा, मेरे हौसले की दाद तो दो। आज हकीकी तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद इन्ना लिल्लाहि इबादन अताऊ फीमा अरादा फअताऊ फीमा अरादू। फरमाया, ऐ मेरे रसूल, मेरे कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो मैं चाहता हूं वो इताअत करते हैं, जो वो चाहते हैं मैं इताअत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन्ना नारा होना चाहिए इन्ना नारा नहीं आया। नारा हैदरी, सुभान अल्लाह, किबला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अताऊ इताअत की उन बंदों ने, फीमा अरादा जिसमें अल्लाह का इरादा था, फअताआ फीमा अरादू फिर मैंने भी इताअत की जो उनका इरादा था। और 14 से बड़ा इताअत वाला लाओ। क्या कहने? क्या कहने? जी जी, यही तो वो मफहूम इताअत है जो अभी मैंने कहा। जब कहा उठ अल्लाह के हुक्म से, क्या कहने? नहीं उठा तो कहा अच्छा फिर मेरे हुक्म से। सुभान अल्लाह, किबला सुभान अल्लाह। हाँ ये है मफहूम इताअत। थक गए तो बस काफी है मेरे लिए। पीछे वाले दोस्त, हदीस आ गई, सुभान अल्लाह। सरकार चार उनकी सुना दूं? हाँ क्या तो देखो मंसूर शाह जाबर नकवी, वजह ये है हमारा ये अकीदा ज़बानी तो है, हम आले मोहम्मद को वसीला बनाते हैं अल्लाह तक जाने का, पर ये ज़बानी ही ज़बानी है, इसीलिए हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं। अल्लामा मुजस्सी अलैहिर्रहमान ने ज़वार भाई तो बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है अपनी किताब मिरातुल उक़ूल में। वो फरमाते अत्तवस्सुलु बिहिम अन गैर मौरिफतिन बिहिम मसलुल जिहाद बिदून सिलाहिम। वो कहते आले मोहम्मद से उनकी मारिफत के बगैर तवस्सुल करना ऐसे ही है जैसे बगैर तलवार के जिहाद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मारिफत वो तलवार है क्या कहने? कि जिसके जरिए तकदीर की जंजीर को काटा जाता है, हाँ, जिसके जरिए क़ज़ा क़दर की डोरियां कट जाती हैं। सर उठाना, तेरा चौथा इमाम बैठा है, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम की तफसीर कर रहा है मेरा इमाम। घबराहट तो नहीं है ना? वहां ये जुमले बोले सैयदुस साजिदीन ने, फरमाते लोगों याद रखो, लैसा बैन अल्लाह व बैन हुज्जतिही हिजाबुन व लैसा लिल्लाहि दून हुज्जतिही सित्रुन फनहनु अबवाबुल्लाह व नहनु सिरातुल मुस्तकीम व नहनु ऐबतु इल्मिही।
वन्नहनु तर्जुमान वहयही वन्नहनु अरकान तौहीदही वन्नहनु मौज़िउ सिर्रही। फरमाते अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। क्या कहने की मैंने कहा अल्लाह जाने किसने क्या समझा, किस पानी में किस तनाजुर में देखा। लैसा बैन अल्लाह व बैन हुज्जतिही हिजाब, अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान कोई हिजाब नहीं। वलैसा लिल्लाहि दून हुज्जतिही सित्र, अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान कोई सित्र भी नहीं। ये हमारी जुबान की बेबसी है कि हम हिजाब का तर्जुमा भी पर्दा करते हैं, सित्र का तर्जुमा भी पर्दा करते हैं, लेकिन फर्क है जो हिजाब, जो ओट, जो आड़, जो पर्दा नजर आए वो हिजाब कहलाता है, और जो नजर ना आए वो सित्र कहलाता है। और मेरे वाला फरमाते हैं हुज्जत और खुदा के दरमियान ना कोई जाहिरी पर्दा, ना कोई। वाह वाह वाह। अगला तर्जुमा बाद में करता हूँ, इसे एक लम्हे के लिए यही रोक लो, बाकी रकबी सार उठाना। तफसीर फुरात से बड़ी तफसीर तेरे मजहब में कोई नहीं। गैबत सुगरा के जमाने की तफसीर, 1150 साल से पुरानी तफसीर, उसमें तेरे रसूल की हदीस है। अपनी भरी हुई असहाब की महफिल में रसूल ने फरमाया ला यहजुबु अलियन अनिल्लाहि हिजाबुन व या यस्तुरुहु अनिल्लाहि सित्रुन लिअन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब। फरमाया मेरे सहाबियों, अली और अल्लाह के दरमियान ना कोई हिजाब है ना हिजाब है, ना अली और अल्लाह के माबैन कोई सित्र है। क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया लिअन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब, क्योंकि वो सित्र, वो हिजाब जिसमें अल्लाह छुपा हुआ है, वो हिजाब खुद अली ही तो है। ना सानू अपने ईमान से अपने यकीन से पे साडे नसीब किड्डे चंगे ने 30 साल दसी सानू दस साडे वक्त नाराए क्या कहने लिअन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब, क्योंकि वो सित्र, वो हिजाब जिसमें वो छुपा हुआ है, वो खुद अली ही तो है। अब पर्दे से ज्यादा कौन जान सकता है कि पर्दे में क्या है? क्या कहने की बात? अर्शी मसबूलुन अलैना वैनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना। कौन जान सकता है इनसे ज्यादा है? अली की जात तो वैसे भी मशीयत की दो धारी तलवार है। हालांकि नबी जो आईना होता है वो अक्स नहीं होता, जो अक्स होता है वो आईना नहीं होता। अल्लाह जाने मैंने क्या कहा, हमारे सरों से गुजर गया। अब देखें मेरे सामने आईना है, उसमें मेरा अक्स नजर आएगा, अक्स और है, आईना और है। अली वो दो धारी तलवार है, उसका आईना भी खुद है, उसका अक्स। अच्छा बारी बनाई हुई है, अब इन्होंने लगाया, इन्होंने नहीं लगाया। जब ये लगाते हैं वो नहीं लगाते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई बात? मैं कहा दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार तो समझते ही हैं बच्चे, यानी तलवार एक तरफ से काटती है, दूसरी तरफ से चिपटी होती है, कुंद होती है, और अगर दूसरी तरफ को भी कूट के
बारीक बना के धार बना दी जाए तो वो इधर से भी काटती है, इधर से। इसीलिए मैं कह रहा हूं मशीयत की दो धारी तलवार है अली, इसलिए दोहरे दोहरे रूप है अली के, दोहरे दोहरे रिश्ते हैं अली के। तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो। अब पता नहीं जाफर नकवी आज मुझे क्या हो गया है, मुझे हो क्या रहा है। तुम मक्की जिंदगी में देखो, अली ने मक्की जिंदगी में सिर्फ इताअत बताई है मोहम्मद की। मदनी जिंदगी शुरू हुई, फिर ये अक से इलाही बन गया। तुम देख लो मक्के में रसूल ने कभी ताजीम नहीं की अली की, बल्कि अली शबे हिजरत सदका तक बन के सो गया अली का। लेकिन जो ही अपनी जान बेच के दोनों अली एक दूसरे में जम हो गए, अक से इलाही हो गया। अब कभी खैबर में मोहम्मद रकाब पकड़ रहा है। सारी जिंदगी ये जम होने की दात देने रही है, दात थोड़ी है। जब दोनों अली जम हो गए, सारी जिंदगी दात दे रही है, दात थोड़ी है। तो जेड़ा बंदा अली दे नाम ते नारा नहीं मारदा, ओनू फिर आउण दी भी जरूरत नहीं करनी चाहिए। नारा है अली। चले तो नहीं गए मेरे मोहतरम साहब जी। दो धारी तलवार, दो धारी तलवार। फिक्रा मैंने कलम छुपाया हुआ है, हाँ उस पर मैं पहले से वाकिर कह रहा हूं कि उस पर तुम सारी जिंदगी वाह वाह करते रहो, सारी जिंदगी नारे लगाते रहो, जुमले का हक अदा नहीं होगा। लेकिन जो तुम दे दोगे मैं ले लूंगा, ये मेरी फराख दिली है। हालांकि जिन्स बड़ी कीमती है। कीमती जिन्स है कि अल्लाह रिजाओं का खजाना भी दे के कहता है तुझे बाद में राजी करूंगा। अंगड़ाई कुछ इस तरह से ली हक के वली ने, मर्जी में जो मर्जी थी लुटा दी वो जली ने। दुश्मन तो बहुत दूर, ये बिस्तर भी पुकारा, अहमद की तरह सो के दिखाया है अली ने। और मेरा दूसरा जुमला जो आखिरी जो मैंने कहा, साल नहीं बल्कि जिंदगी भर दाद दे तो हक पूरा नहीं होता, इसी सोने से ही तो ताल्लुक रखता है। मैंने कहा दोहरे दोहरे रिश्ते कायनात में। जाफर नकवी, मंसूर शाह, दो बड़े हैं अली से, बस दो। पूरी खुदाई में अली से बड़े सिर्फ दो हैं, एक मुस्तफा, एक खुदा। मेरा ईमान, मेरा अकीदा मैं मान रहा हूँ। हजारों के मजमे में गिरान कुरैशिया में फैसलाबाद की सरजमीन पे ऐलान कर रहा हूँ, अली इन दोनों से छोटा लेकिन मुकद्दर साज ऐसा। जली और नबी में खींचातानी हो रही है। रसूल कहता है मेरा है, अल्लाह कहता है मेरा है। और नहीं बल्ले बल्ले अनफुसकुम, रसूल कहता है नफ्स रसूल है। युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह कहता है नफ्सुल्लाह है। नसरतनी जहरन, रसूल कहता है मेरा नासिर है। सूरह हदीद में अल्लाह कहता है यालमल्लाहु मन यंसुरुहु, मेरा नासिर है। ये है मशीयत की दो धारी तलवार। और सर उठाओ, मैं देखता हूँ कौन बदनसीब है यहाँ, कौन मुकद्दर का सिकंदर। शब हिजरत
रसूल के बिस्तर पे सो जाए तो बशर कहता है नबी है, शब मेराज पर्दे में छुप जाए तो नबूवत कहती है। दामाद मोहम्मद जन्नत के दर पर जबरील के पर मैं मर भी जाऊं तेरी कफन पे लिखना तेरी कब्र के अंदर मेरा साथी कौसर मेरा दर्द जुबान नातिक कुरान तेरे ईमान तेरे मर्दान तेरे यज़दान फर्श पे देखो फर्श पे देखो काबे में देखो मरहम में देखो काबे को उखाड़ा हक को पुकारा नबियों ने पुकारा वलियों ने पुकारा हर दिल ने पुकारा हर दिल का सहारा के बोलो अली हक के नारा है। मेरा मौला तुमसे राजी हो। हाँ, छोड़ देना चाहिए था कि इससे बड़ा जुमला शायद मैं कह ही ना पाऊं। हाँ, अब जैसा आप कहें कहो तो यहीं लपेट लूं, वरना 2-3 लफ्ज रह गए थे हदीस के तर्जुमे से। अच्छा, हाँ, अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान सैयद सज्जाद फरमा रहे थे, सुभान अल्लाह, कोई हिजाब नहीं होता, कोई सित्र नहीं होता है? ये जब कुछ नहीं था ना, अल्लाह उस वक्त जाहिर था। क्या कहने, जब कुछ नहीं था। बल्कि अल्लाह गायब ही शिद्दत ज़ुहूर की वजह से है। शिद्दत ज़ुहूर, शिद्दत ज़ुहूर, यही हक होता है सुनने का। तुमने समातों का हक अदा कर दिया है। शिद्दत यानी जो चीज जरूरत से ज्यादा जाहिर हो वो गायब हो जाती है। ज़हूर वास्ते मिलकर और डॉक्टरों पर शिद्दत कुर्ब की वजह से गायब है। इंतहाए कुर्ब की वजह से अल्लाह गायब है। लफ्ज़ कहने लगा हूं, अगर जाग रहे हो अपने मुकद्दर की तरह, क्योंकि मुकद्दर तो तुम्हारा बड़ा है, तो तुम्हारे हिस्से में अली लिखा गया है। सुपर पावर नाम है इंतहाए कुर्ब। खुदा की कसम, लोगों को तौहीद नहीं आती इसलिए अली के मुनकर हैं।
बड़ा आरिफ होगा, क्या कहने? वो अली का उतना बड़ा कायल होगा। हाँ, खुदा नहीं समझ में आता, पता ही नहीं तौहीद का, साहिबान इल्म को पता नहीं, अवाम तो फिर वाम है, क्योंकि रोयत के लिए इल्म कलाम का मसला मसाइल के 8 चीजें जमा हूं। मैं आपको मसाइल कलामिया में उलझाना नहीं चाहता, 8 चीजें जमा हूं फिर शायद नजर आती है। बिस्मिल्लाह। उसमें है मसाफत हसना, यानी देखने वाली चीज और आपकी आंख के दरमियान मुनासिब फासला, न हद से ज्यादा न हद से कम। अगर फासला हद से कम हो गया फिर भी शायद नजर नहीं आएगी, जिसकी दलील ये है कि जब आपकी आंख में तिनका चला जाए आपको नजर नहीं आता। तिनके दी जेड़ी दाद है मिल ही नहीं सकती, और शक भी वही कर रहे हैं जिन्हों के तिनका बह गया होया। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि वो हमारी आंख से बिला फसल हो गया है, इंतहाई कुर्ब पे चला गया है, गायब हो गया। क्या कहने? तो अल्लाह जो कि शहरक से ज्यादा करीब रहता है। इस वजह से करीब है, और अली है हिजाब। हिजाब और जुल हिजाब में थोड़ा सा फासला होता है, इसीलिए बरज़ख बैनल वजूब वल इम्कान, यानी वजूब और इम्कान के दरमियान जो बरज़ख है, जो हद फासिल है, वो अली है। और इसका मसरफ सरवर शब मेराज समझ में आया, क्योंकि अल्लाह हदीस कुदसी में वादा कर बैठा था कि जो मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाए मैं 2 बढ़ता हूं। अगर कोई 1 पोर बढ़े मैं बालिश्त बढ़ता हूं। अगर कोई बालिश्त बढ़े मैं हाथ बढ़ा के आता हूं। अब शबे मेराज मेरे रसूल ने बढ़ना शुरू किया। आखिरी बंदे वालों खड़े हुए अगर थकने गए, तमाम शिया सुन्नी दोस्त एक लम्हे गज़नफर की आंखों में आंखें डालें। सुम्मा दनाओ फतदल्ला, अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने भी माना कि दना की ज़मीर रसूल की तरफ है, तदल्ला की अल्लाह की तरफ से है, कि इधर ये पढ़ा, इधर अल्लाह ने इस्तकबाल किया। अब 2 चीजें, एक शय नहीं, एक शय जैसा नहीं। एक शय नहीं, खालिक शय है, एक शय जैसा नहीं बंदा होकर भी। दोनों जिब्रील की सोच से भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ नहीं, अब ऐसा है जाफर नकवी कि मैं बस पे बैठा हूँ, फैसलाबाद पहुंचना है, मजलिस का टाइम जा रहा है, लेकिन यार ये नहीं पहुंचाएगी, छोड़ दी, नई वाली बस पे बैठ गया, वो तेज थी, देखा यार ये भी नहीं, वो छोड़ दी, कार पे बैठ गया। ये सवारियां बदली इसलिए जाती हैं कि पहली सवारी की रफ्तार पे भरोसा नहीं होता। बुराक को छोड़ दिया, हालांकि जो चश्मे सदन की देर में 70,000 आलम तय कर सकता था, छोड़ दिया, माठा है। क्या कहने? जाके फिक्र सुन लो, समेट दिया मैंने अपने बयान को। माठा है, रफ रफ बुला लिया।
मुतमईन नहीं हुए, छोड़ दिया, सुस्त है, बहरम बुला लिया, आगे में कहा मैं खुद ही पैदल जाऊंगा। अब यहाँ मेरे सामने डॉक्टर जफर इल्म के इतने दरवाजे खुले हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सा बंद करूं। एक कानून जज्बो इंजजाब होता है, जज्बो इंजजाब है। अब देखना, और जो कुव्वत ज्यादा हो वही अपनी तरफ खींच लेती है। मिकनातीस देखा है? मिकनातीस, मिकनातीस जाज़िब है, लोहा इंजजाब है। अगर कोई सुई या मोटी सुई हो, दूर से मिकनातीस दिखाओ, वो खींच लेगा सुई को, क्योंकि जाज़बा वाली कुव्वत ज्यादा थी। अगर किसी लोहे के गार्डर के पास ले जाओ, सारा दिन किए खड़े रहो, हाँ, मिकनातीस नहीं खींचेगा। जो ही करीब करोगे वो शैतीर मिकनातीस को खींच के अपने साथ चिपका लेगा। नहीं, तौहीद जाज़बा थी, मोहम्मद इंजजाब था। दोनों के जज्बे शिद्दत के साथ, मशीकत की तूफानी रफ्तारों के साथ एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। तौहीद सोच रही है अभी रुकता है, नहीं रुका, अभी रुकता है, नहीं रुका, अभी रुकता है, नहीं रुका। ये भी बढ़ता रहा, वो भी बढ़ता रहा। काबा कौसैन आ गई, इम्कान की सरहद कि अब रुक जाएगा, और अदना पे पहुंच गया, देखा नहीं रुकता। अगला कदम कसरे तौहीद है। आवाज़ें गुजरता है, या अली मैंने तुझे वजहुल्लाह क्यों बनाया, ऐनुल्लाह क्यों बनाया, वजहुल्लाह क्यों बनाया, अब्दुल्लाह क्यों बनाया। आज मोहम्मद और मेरे दरमियान हायल होके उसे रोक दे, मुझे छुपा ले। लेट आए, 140 घंटे की रफ्तार से आए हैं बगोदा से। गुजारिश ये है कि आज इस मस्ती और मुबद्दत के समंदर में यकीनन अपनी माँ की पाक दामनी में रच आया है, और दोनों हाथ बुलंद करने हैं। फलक शिगाफ दम मस्त कलंदा, दम मस्त कलंदा, मेरा बात है काबा, मेरा शाबे मैशा, मेरा साकी कौसर, कौसर पे मिलेंगे, जाम चलेंगे, भर के पिएंगे। नारा रसूल पर्दे के बाहर था, वो पर्दा तो दिखा जो मेरे रसूल की नजरें रोक ले। हाँ, वो पर्दा दिखा। कपड़े का पर्दा रोकेगा रसूल को। समझ में आई बात या नहीं? पत्थर की दीवारें रोकेगी। जिसके वसी को माँ के दुर्ज इस्मत में, जुज़दान इफ़्फ़त में अल्लाह के घर की दीवारें न रोके, मोहम्मद को वो दीवार रोके। बताओ तो सही, कौन सी रखेगी? कोई नहीं था पर्दा सिवाय अली के।
اور یہ نہ سمجھ لینا کہ علی نے روک لیا رسول کو. بس میں جا رہا ہوں سرور. آخری بات، عرش سے وزنی تیرے سامنے ان کی جھولی میں ڈال کر روک علی بھی نہیں سکتا تھا محمد کی نظروں کو. تو پھر اللہ نے درمیان میں بٹھایا کیوں؟ کہا یا علی جلدی سے درمیان میں آ جا. پچھلے جمعے اپنے صحابہ سے خود کہہ کے آیا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جو ہی تو سامنے آئے گا یہ عبادت کرے گا، میں چھپ جاؤں گا. جتنی قوت دلوں میں ہے صرف 10 منٹ اور زیادہ سننے کے لیے. جتنا ماں نے دودھ نادیلی پڑھ کے پلایا ہے، نہ جب تک آواز ہے نعرہ ظرف چھلکنے کا مقام تھا. اب عزیز نے کہہ دیا نعرہ کا ایک بس جملہ کہتا ہوں ورنہ یہیں پہ. میں نے ہمیشہ اندر کے غضنفر کی بات مانی ہے. جی تو بھائی کا چہرہ دیکھنے لگ گیا، بے چہرے کا پردہ رہ گیا. اب سرور تمہارے سامعین، مجھے نہیں پتا، کاش علم غیب رکھتا میں، کہ وہاں علی کی موجودگی کو مانتے ہیں یا لہجے کو مانتے ہیں. موجودگی والے نے اچھا اندر ہی لنگ سکتا. نہیں ویسے میں بڑا فراخ دل ہوں، اگر کوئی لہجے والا ہے نہ گھبرائے، میرا آدھا ووٹ تیرے ساتھ بھی ہے. دیکھنا اگر یہاں جو آیا ہے جی اس نوری فضا میں اس